Good morning, teachers. I hope I'm audible to everyone. Yes. Good morning, sir. Yes, we can hear you. Abhinav this side from Yuvan Gurukul Dehradun. First, I would like to give you some information about our organization. So, I'm going to share our website. I hope the screen is visible to everyone. Yes. So, our website is yuvangurukul.com, and you can see this website also. Okay, so Yuvan Gurukul, we are managed by Yuvan Research and Educational Trust, and this trust is ISO certified trust. And our goals and objectives are making education inclusive, empowering budding scientists, and developing teaching aids. And this is our core team, and these are some of the initiatives that we are following in this trust. And teachers, I would like to share some resources with you. If you come to this section training, there are workshops and there are teaching aids. All the workshops that we conduct, they are published on this page. So you can access all the workshops that we have conducted for this session, and everything is available. This is in the recorded form. I hope you can see this website and all the links. Okay, and second is resources that we offer to teachers. If you come to our e-library, we have resources from class 6 to class 12, and they are for all the subjects. And if you click on access resource, suppose I do it for class 12 science, so there is a PDF that will open, and when you will click on any of the link, these resources will open. So we have videos in English, we have videos in Hindi, we have chapter wise PPT, we have chapter wise notes, we have question bank, and all this content is published free from class 6 to class 12, and this is for CBSE and CAIE Cambridge curriculum. So if teachers you want to access these resources, you can visit our website, and all these resources are published for free. And if you want editable PPTs, we can also share editable PPTs with you. If you want editable notes, we can also share editable notes with you. And all these resources are free and offered by our trust. So this was the introduction about our organization and what we are offering to teachers other than these trainings. Now coming to our host for our speaker for the day. So this workshop is creating inclusive classroom environment, and our resource person is Miss Lavanya Sharma. She is RCI registered special educator, and she is working in the field of education for like 1 year in special education for 1 year. She will share her experience, and she will give us some knowledge about how to deal with students having special needs. So over to Miss Lavanya.
Hello everyone, I'm Lavanya Sharma, special educator. My specialization is in intellectual disability. Here today I'm speaker of this webinar. Today's topic is creating inclusive classroom environment. Can we start now or after a few minutes? Yes, ma'am, we can start. Okay, I'm sharing my screen. Just give me a minute. Is it visible to all of you? Our today's topic is creating inclusive classroom environment. Let's have a look on the objectives of this topic. First, gain an understanding of the term inclusion. Explore the purpose of inclusion in education. Examine diversity within a classroom setting. Identify challenges associated with creating inclusive learning environment. Learn the principles of inclusion. Explore the role of teachers in fostering inclusive learning environments. ये ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में, इस वेबिनार में. चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज इंक्लूजन. इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन एक प्रैक्टिस है जिसमें इंश्योर किया जाता है हर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस हम उनको अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेशन का सोसाइटी में फुल एक्सेस दे सकें. इंक्लूजन मीन्स होता है इंक्लूडिंग ऑल. हमें यहाँ डाइवर्सिटी को वैल्यू देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, फॉस्टर करना है सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां हर इंडिविजुअल डीपली एक्सेप्टेड फील करे. पर्सन जिसको किसी भी कारण से सेग्रीगेट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, उसके बैरियर्स को रिमूव करके हमें हर इंडिविजुअल के फुल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना. इंक्लूजन प्रमोट्स इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस. अब देखिए, अगर हमें इक्विटी, डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करे तो वैल्यू दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए और एम्पावर किया जाए. अब इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूडिंग ऑल. तो इसमें क्या क्या ग्रुप्स आते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए ताकि हम इंक्लूजन में उन्हें इंक्लूड कर सकें. इसमें आते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, students from diverse cultural background. Diverse cultural backgrounds मतलब different cultural background से जो students हैं उनको भी हमें include करना है. Students from low income families, students with linguistic diversity. Linguistic का मतलब होता है languages. Students with behavioral or emotional challenges. Students from rural or remote communities. Students with medical conditions, chronic illness. Students with physical disabilities or mobility challenges. Student with sensory impairment में visual impairment, hearing impairment, इन सबको भी हमें include करना है. और students from marginalized racial और ethnic groups, तो हमें इन सब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और इन सबको हमें include करना. अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं बायोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं. पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, वेज ऑफ थिंकिंग, लिविंग, फेथ, बिलीव्स, और यही डिफरेंसेस उन्हें यूनिक बनाते हैं. डाइवर्सिटी मींस होता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेस विद इन ग्रुप्स, कम्युनिटीज. ये डिफरेंसेस वेरी करते हैं जैसे कि रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, religion, disabilities and cultural background. Diversity include करती है different perspectives को, experience को और identities को, जो हर individual एक particular setting से लेकर आता है. अब diversity हमें
हेल्प भी करती है, डाइवर्सिटी हेल्प करती है टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स की, ताकि वो रिकॉग्नाइज करें इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और रिस्पेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस इन द क्लासरूम। इससे हमें हेल्प मिलती है क्लास इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, जहां इंडिविजुअल को वेलकम किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए और अच्छे से हर एक एक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूशन भी निकल पाए। डाइवर्सिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को भी क्लासरूम तक ला पाए। अब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सोसाइटी से आता है, तो यहाँ क्या होगा कि उसके खुद के कुछ पर्सपेक्टिव्स होंगे, कुछ खुद के एक्सपीरियंस होंगे, जिनको हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं एज अ एड। अब इस डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है क्लासरूम को, कैसे प्रभाव डालेगी? देखिए, सबसे पहले एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस। जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें एनरिच किया जाए। कैसे? जब ऐसे एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस जब हमें प्रोवाइड होंगे तो हम बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फॉस्टर कर पाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग को, एनहांस कर पाएंगे लर्निंग थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजीज। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है कल्चरली, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी आ जाती है। अब एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन के कल्चर को समझेगा, जानेगा और इंटरैक्ट करेगा तो एक डेवलप होगी अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर काफी हमारे प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स भी रिड्यूस हो पाए। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसका मीनिंग होता है कि हमें बच्चों को इतना कैपेबल बनाना है कि जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है उसको वो एनालाइज कर पाए और लॉजिकल वे में उसके बारे में सोच पाए, उससे डिसीजन मेकिंग कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए। रिड्यूस प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस होते हैं an unfair feeling of dislike for a person or a group because of differences. स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग होता है untrue beliefs। जैसे कई बार कुछ लोग एक कम्युनिटी के लिए कुछ untrue beliefs बना लेते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी हो सकते हैं। तो अगर सब लोग इंटरैक्ट करेंगे, आपस में एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, हम इन सभी चीजों को रिड्यूस भी कर। प्रिपरेशन फॉर द ग्लोबल सोसाइटी। अब ग्लोबल सोसाइटी इस तरीके की हमें प्रिपेयर करनी है जहां पर हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए, वैल्यू फील कर, एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग। हर बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो कुछ ना कुछ चीजें अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्टिविटीज करके सीखता है। और हम यहाँ जब इंडिविजुअल अपने मतलब जैसे एक्सचेंज करेंगे आइडियाज, एक्सपीरियंस, जब इंटरैक्ट करेंगे वो, तो उससे क्रिएटिविटी भी क्लासरूम में बढ़ेगी और इनोवेशन भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी एक क्लासरूम में होनी। इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट। ये एकेडमिक अचीवमेंट को भी इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है इक्विटी एंड इंक्लूजन, और कल्टीवेट करती है एम्पैथी एंड कंपैशन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महत्व देती है हमारी एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। जो डाइवर्सिटी है उससे ही हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं कि इंडिविजुअल के यूनिक है, और वो रिकॉग्नाइज कर पाना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है किसी में, ताकि हम उन्हें लर्निंग में एक तरीके से एज अ टूल यूज कर सकें। डाइवर्सिटी में हमें हर स्टूडेंट को इंक्लूड करना होता है, irrespective of their differences like race, ethnicity, culture, language, religion, and abilities and many more. एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को फोस्टर करना जहां हर स्टूडेंट लर्न कर पाए, अप्रिशिएट करे या रिस्पेक्ट करना उसके डिफरेंसेस को, जहां हर स्टूडेंट को के अंदर एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डेवलप हो, एबिलिटी टू रिस्पेक्ट, वैल्यू डेवलप हो, बिलीफ जो है उसके अगर नेगेटिव बिलीफ्स है तो वो रिड्यूस हो और वो एक पॉजिटिव नेचर या बिहेवियर डेवलप करे।
डाइवर्सिटी जो होती है क्लासरूम में प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, और ये इसके अलावा प्रमोट करती है एम्पैथी एंड कोलैबोरेशन को क्लास में, जहां डिफरेंट नीड्स के स्टूडेंट लर्निंग करेंगे। हर एक इंडिविजुअल जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको भी रिस्पेक्ट दी जाएगी और साथ में इंटरेक्ट करके एक अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं, जानते हैं लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। हर इंडिविजुअल का एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है, जैसे विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, काइनेस्थेटिक हो सकता है। विजुअल लर्निंग स्टाइल एक स्टूडेंट जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए थ्रू विजुअल एड्स सच एज इमेजेस, डायग्राम्स, चार्ट्स एंड वीडियोस। लर्नर्स की बेटर लर्निंग तभी हो सकती है जब हम उनको मटेरियल उनके सामने प्रेजेंट करके दिखाएं, उनको दिखाया जाए वो मटेरियल। उनको विजुअल स्टिमुलाई हेल्प करती है इन सब चीजों में, इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिटेन करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। इनको हम आउटलाइंस, ग्राफ्स, मैप्स, पिक्चर्स के थ्रू अच्छे तरीके से लर्निंग करवा सकते हैं। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, ये स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज को सुनकर रिसीव करते हैं। इनको मेनली स्ट्रगल आता है रीडिंग, राइटिंग में, बट स्पोकन वर्ड्स को याद करना इनके लिए बहुत इजी है। जैसे अगर सॉन्ग के लिरिक्स हो या फिर कोई भी चीज ओरली प्रेजेंट की जाए तो ये बहुत इजीली लर्न कर पाते हैं। जैसे हम क्लासरूम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, ओरल प्रेजेंटेशंस की अपॉर्चुनिटीज इनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लर्निंग स्टाइल आता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल होता है जिसमें स्टूडेंट्स थ्रू मूवमेंट, थ्रू एक्टिविटी सीखते हैं, और इनको बहुत अच्छे से अगर इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो इनके लिए हमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, रोल प्ले, इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स, फील्ड ट्रिप्स, एजुकेशनल गेम्स, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें फिजिकल इंटरेक्शन हो सके प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्लूजन इन एजुकेशन। इंक्लूजन का मीनिंग अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इंक्लूजन का मीनिंग होता है हमें इंश्योर करना है हर स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिसेबिलिटी लर्निंग कर पाए, सभी को इक्वल एक्सेस मिले, क्वालिटी एजुकेशन का सभी को फुल्ली इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए, साथ में मेन स्ट्रीम क्लासरूम में लाया जाए, स्कूल कम्युनिटीज में लाया जाए, ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व किया जाए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, जहां उन्हें सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिले, जहां हर बच्चे को डाइवर्स लर्निंग नीड्स जो है, उनकी एबिलिटीज जो है, उनके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर सके, एनवायरनमेंट को एकोमोडेट कर सके। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है हर स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चाहे वो एकेडमिक हो, सोशल हो या इमोशनल। जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं 3 होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो हर डोमेन पर हमें काम करना है, हर तरीके से हमें देखना है कि किसी भी तरीके से हर एक बच्चे का कोई भी डोमेन अफेक्टेड ना हो। तो उस सब पे काम करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पर हर किसी के पर्सपेक्टिव, ओपिनियंस, इन सबको रिस्पेक्ट दी जाए, वैल्यू दी जाए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हमें महत्व देना है तो वो देना है कोलैबोरेशन अमंग एजुकेटर्स, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट स्टाफ, स्टूडेंट्स, फैमिलीज। हमें इसमें स्टूडेंट्स को ही नहीं, हमें इसमें सारे सर्विसेज, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर सबको इंक्लूड करना है ताकि एक बेटर प्लानिंग हो सके स्टूडेंट्स के फ्यूचर, और एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जहां स्टूडेंट अपना फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें रिमूव करने हैं सारे बैरियर्स टू लर्निंग, हमें सबका पार्टिसिपेशन कराना है लर्निंग में, एंगेज करना है स्टूडेंट्स को ताकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में वाइड रेंज में,
और जनरल एजुकेशन जो क्लासरूम है उसमें भी हमें सप्लीमेंट्री एड्स अगर किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है, नीड है, तो वो भी हम फुलफिल करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये थेरेप्यूटिक सर्विसेज हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे में कोई बिहेवियरल इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। एक स्टूडेंट को वैल्यू फील कराई जाए और इक्वल मेंबर बनाया जाए सोसाइटी का, स्कूल कम्युनिटी का, उसकी भी बात की उतनी ही वैल्यू हो जितनी अदर स्टूडेंट्स की हो। रिस्पेक्ट किया जाए डिफरेंसेस जो होते हैं चिल्ड्रन के बीच। इनेबल्स एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्टूडेंट के लिए हमें सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि हमें उसके डिफरेंसेस हो, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, जो सिस्टम्स होते हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो टीचर के इंस्ट्रक्शंस है, उन सबको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है ताकि वो फुलफिल कर सके एक स्टूडेंट की नीड, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग हो सारी चीजें। जो हर इंडिविजुअल के राइट्स हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनको भी हमें एडवोकेट करना है। अब आ जाते हैं हम बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। कुछ बैरियर्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में जिन्हें हमें हटाना है ताकि एक स्टूडेंट का फ्यूचर में एक अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और इंडिपेंडेंट बन सके। सबसे पहला हमारा एटीट्यूडनल बैरियर आता है। एटीट्यूडनल बैरियर होता है जैसे कि कई बार पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सोसाइटी का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है और अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है वो नेगेटिव, या कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है। ये नेगेटिव एटीट्यूड बैरियर बन जाता है। इंडिविजुअल की जब हमें लर्निंग करानी है तो इन्हीं सभी नेगेटिव एटीट्यूड्स की वजह से अगर एक पर्सन चाहे भी तो वो फुल पार्टिसिपेशन भी नहीं करता। कई बार उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है पर वो हमें दिख नहीं पाता। जो पर्सन है जिसके साथ ये नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, समटाइम्स वो इंफीरियर भी फील करता है। जैसे कई लोगों के पास मतलब बने होते हैं प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, नेगेटिव असम्पशंस होना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कई लोग आज भी मानते हैं कि जो डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना पॉइंटलेस, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो नेगेटिव असम्पशंस का होना है, ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की एबिलिटीज को लेकर क्यों है? क्योंकि उनके अंदर है लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है कि उनके अंदर डेवलप करनी होगी हमें अवेयरनेस, और हमें उनको वर्कशॉप्स, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सेमिनार्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आई होप कि वो डेवलप हो पाएगी अवेयरनेस एजुकेशन में। और वो भी चाहेंगे कि हम इंक्लूड कर पाए सभी को एजुकेशन में और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। इस बैरियर को हमें रिमूव करना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस बैरियर है एजुकेशन में। अगर हमें किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग करानी है तो उसके लिए हमें रिमूव करने पड़ेंगे एटीट्यूडनल बैरियर्स, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लर्निंग। अब हम आगे चलते हैं फिजिकल बैरियर। एक स्टूडेंट वो स्कूल आता है और टीचर्स का जब एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, पर अब क्या है कि जैसे बच्चा आया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबिलिटी इंपेयरमेंट है किसी, अब इसके कारण उसे प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम में आने में, क्योंकि स्कूल में रैंप्स नहीं है, एलिवेटर्स नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं। तो अब बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट है अगर वही अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वही अकोमोडेट नहीं होगा, तो फिर बच्चा जो है लर्निंग नहीं कर पाएगा और ये क्रिएट करेगा एक फिजिकल बैरियर। यहाँ पर हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लासरूम नीड पर द चाइल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट को जिस असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है वो मौजूद होना चाहिए और हमें फिजिकल बैरियर को ओवरकम करना। अब कई बार ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने या सुना होगा बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो यहाँ पर बिल्डिंग को भी हमें इस तरीके का बनाना है जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसमें वो बैरियर ना बने। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल बैरियर। इंस्ट्रक्शनल बैरियर क्या होता है कि
एक पूरी क्लासरूम है जिसमें इन हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं और टीचर जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रही है पूरी क्लास के लिए सिर्फ लेक्चर मेथड एक कॉमन असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रोसीजर यूज किया जा रहा है एक फिक्स्ड टाइम टेबल एक सिंगल टेक्स्ट बुक यूज की जा रही है एक रिजिड एज ग्रुपिंग कर दी बच्चों की फोकस किया जा रहा है मार्क्स ग्रेड्स पर इग्नोर की जा रही है एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स और जो बच्चे हैं उनके पर्सपेक्टिव्स की तो बात ही नहीं की जा रही उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी न के बराबर है और उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन भी आ रहे हैं तो ये जो एनवायरनमेंट है ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शनल बैरियर है यहाँ पर जो होना चाहिए क्लासरूम में वो होना चाहिए कि हमें क्या करना है बच्चे को मद्देनजर रखते हुए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे मेथड्स क्लासरूम में जो भी स्ट्रेटजीज है अप्रोचेस है टीचर को एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूज करना पड़ेगा जहां पर अगर एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है हमें क्या करना है कि उनकी नीड को भी अंडरस्टैंड करके उनको क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फुल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करनी है फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड होना चाहिए जो हर स्टूडेंट के लिए एप्रोप्रिएट हो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर इंडिविजुअल का जहां टीचर का रोल होना चाहिए एज अ फैसिलिटेटर और स्टूडेंट को वहां पर सेंटर्ड में रखा जाए हमें प्रोवाइड करनी है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन एनहांस करना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सपीरियंस दो ऐसे सिचुएशंस दो जहां पर उनकी लर्निंग खुद हो सके हमें वेरियस असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स को भी यूज करना अब हम बात करते हैं कि एज अ रिसोर्स टीचर स्पेशल एजुकेटर हमारा रोल क्या आता है इस चीज में हमें आइडेंटिफाई करनी है स्टूडेंट्स की नीड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ताकि हम स्ट्रेंथ्स पे भी काम कर सकें और वीकनेसेस पे भी काम कर सकें डिटरमाइन करना है स्पेशल सर्विसेज नीडेड बाय द स्टूडेंट जो भी सर्विसेज चाहिए स्टूडेंट को वो प्रोवाइड की जाए अगर किसी स्टूडेंट को स्पीच लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उनके लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हम प्रोवाइड कर सकें ताकि उनकी जो लर्निंग है वो फुलफिल हो सके अब डेवलप करना है स्पेशल प्रोग्राम्स इवेल्युएट करना है स्टूडेंट्स की प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग डिटरमाइन करना है गोल्स ताकि हर एक बच्चे के जो गोल्स हो वो एप्रोप्रिएट हो रियलिस्टिक हो और मेजरेबल हो डेवलप करना है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें हमें डिसाइड करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर अ स्टूडेंट डेवलप करना एक फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल जो प्रोवाइड करे एक बेटर लर्निंग को जिससे फुलफिल हो एक स्टूडेंट की फिजिकल और सोशल नीड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज प्रिंसिपल इन इंक्लूसिव एजुकेशन देयर आर 5 प्रिंसिपल्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन दैट इज एक्सेस इक्वालिटी रेलेवेंस पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट एक्सेस इज यूनिवर्सल एक्सेस देना एजुकेशन का हर किसी को मतलब पूरे तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए एजुकेशन की उसके अंदर कोई भी डिफरेंस हो सोशल लेवल पर क्लास जेंडर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है हमें देना है कि किसी ना किसी तरीके से हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें ताकि एक पर्सन जो है एक इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से अपना फुल पोटेंशियल शो करे और इंडिपेंडेंट बने लाइफ इक्विटी Equity means providing all students the necessary resources, opportunities and support to succeed regardless of their individual differences. अब यहाँ पर एक टर्म आती है fairness. Fairness का मीनिंग होता है providing different level of support based on individual needs. जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअल की नीड प्रोवाइड किया जाएगा और डिफरेंट लेवल का सपोर्ट होगा इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको उतनी ही हेल्प उतनी ही जो थिंग्स है वो प्रोवाइड करनी है रेलेवेंस हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर से आता है उसका खुद का कोई इंटरेस्ट या नीड होती है अब हमें बच्चे को लर्निंग जो करानी है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए
उसको ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना पड़ेगा जहां वो उन सभी चीजों को अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाए, अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर, तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो पाए। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मीन्स कि हमें हर एक स्टूडेंट का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन कराना है, उसके जो ओपिनियंस हैं, आइडियाज हैं, उन सबको हमें वैल्यू देनी है, और यहाँ पर हमें कंट्रोल लर्निंग का स्टूडेंट के हाथ में देना है ताकि हम खुद समझ सके कि इसकी नीड क्या है और इसको हमें कैसे कैसे सॉल्व आउट करना। लास्ट हमारा आ जाता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स कि हमें एम्पावर करना है, ऑटोनॉमी डेवलप करनी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन डेवलप करना है एक स्टूडेंट के अंदर, ताकि वो खुद से सीख पाए, खुद से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले पाए, खुद से वो इंडिपेंडेंट बन पाए। तो उसके अंदर हमें एक लेवल ऑफ मोटिवेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 3 प्रिंसिपल्स फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। अब क्या है वो 3 प्रिंसिपल्स, लेट्स टॉक अबाउट देम। रिस्पॉन्डिंग टू लर्नर्स वॉइस, जो लर्नर की वॉइस है उस पर हमें रिस्पॉन्स देना। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वेट अ मिनट। Yes, now we can start. 3 principles for promoting inclusive practice. इसका मीनिंग होता है हमें रिस्पॉन्ड करना है लर्नर्स की वॉइस को, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है लर्नर का, उसे इन्वॉल्व करना एक्टिविटीज में ताकि वो फुल पार्टिसिपेट करे, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे और सीखे। पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि टीचर को ही उसके लिए प्लान करनी है एक्टिविटीज सब कुछ, तो टीचर का एटीट्यूड बहुत महत्व रखता है, वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। एक इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स का यूज करना चाहिए। मेथड्स जो होने चाहिए वो ट्रेडिशनल ना होकर मॉडर्न होने चाहिए, जैसे इंक्वायरी अप्रोच हो गई, हाइपोथेसिस बनाना सिखाए बच्चे को, साइंटिफिक नॉलेज की तरफ लेकर जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर सके। अब नेक्स्ट आ जाता है विजनरी स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडर्स जैसे प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो फोकस करें लॉन्ग टर्म गोल्स पर, इनोवेटिव सोचें कि बच्चे के लिए क्या प्लान्स और प्रोग्राम्स लाए जा सकते हैं, और सभी को इंस्पायर करें कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पर काम करने के लिए। जितना भी स्टाफ है, टीचर्स, एजुकेटर, इंस्ट्रक्टर्स है, सब एक कॉमन गोल पर काम करें मिलकर, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। कोहेरेंट इंटरडिसिप्लिनरी सर्विस। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें डील करना है डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स या लर्नर्स। इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो वेरियस डिसिप्लिन से हो, जैसे कि थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट, रिसोर्स पर्सन, तो सब मिलकर स्टूडेंट की लर्निंग पे काम करें। तो ये जो सर्विसेज हमें चाहिए वो भी हमारे पास होनी चाहिए और ये भी आपस में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन। हमें प्लान करना है इफेक्टिव वे में इंक्लूजन के अंदर, ताकि हर इंडिविजुअल की नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। हमें इन्वॉल्व करना है टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो है एज अ चेंज एजेंट, जो चेंजेस ला सके एजुकेशन में। इन्वॉल्व करना है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें तो बच्चा जो है स्कूल में कम टाइम स्पेंड करता है और पेरेंट्स के साथ उसका ज्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड होता है। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की नीड क्या है, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और वो भी समझे, इस पर काम करें। तो इसलिए हमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। गेन आउटसाइड सपोर्ट, अगर हमें सोसाइटी से, कम्युनिटी से सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम गेन करें। डेवलप द डिसेबिलिटी अवेयरनेस अमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट। कई बार टीचर तो पॉजिटिव है बट जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ही डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें नहीं पता चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या है। तो यहाँ पर हम उनके अंदर भी अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, स्टाफ के अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी, ताकि वो भी लोग इन्हें समझें और उनकी नीड्स को फुलफिल करें, या फिर उनकी जो प्लान्स है, एजुकेशनल प्लान्स है, वो भी उनमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो। इनिशिएटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड
आउट ऑफ स्कूल इंक्लूसिव प्रोग्राम। हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर है तो उन्हें भी इंक्लूड करें हम। इंक्लूसिव प्रोग्राम्स में भी लेकर, मतलब इंक्लूसिव प्रोग्राम्स में हमें हर तरीके का जो भी एक्सपोजर बच्चे के लिए मिल रहा है वो हमें इंक्लूड करना ही करना। जनरल स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिले, इनके बारे में पता चले और वो भी इनको समझे। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर कोलैबोरेशन। एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए जिसमें हर कोई सपोर्ट करे और कोलैबोरेट करे। मेक एडेप्टेशंस। अब एडेप्टेशंस में करिकुलम बेसिस पर हो, इंस्ट्रक्शन बेसिस पर हो, या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग एड है, सब में अगर हम एडेप्टेशंस कर सकते हैं तो हम करें, अकोमोडेट कर पाए, मॉडिफिकेशंस कर। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स फॉर इंक्लूजन। अब क्या फैक्टर्स है जो इंक्लूजन में इंपॉर्टेंट है? एक है फैमिली स्कूल पार्टनरशिप। जो फैमिली है, स्कूल है, उसकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके द्वारा ही बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है। कोलैबोरेशन बिटवीन जनरल एंड स्पेशल एजुकेटर। जनरल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे दोनों एक अच्छे तरीके से प्लान कर सके एक बच्चे के लिए। वेल कंस्ट्रक्टिव प्लान्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक एकोमोडेशन करे, मॉडिफिकेशन करे, हर एक बच्चे का जो गोल है उसके लिए काम करे। Coordinated planning and communication between general and specific need staff. हमें प्लानिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है, ताकि हम जनरल और स्पेसिफिक नीड स्टाफ है उनके बीच में कोऑर्डिनेट कर पाए और उन दोनों को मिलाकर भी हम अच्छे से प्लानिंग कर पाए। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी। जो सर्विसेज है वो सारी इंटीग्रेटेड हो, बच्चे के लिए जब भी बच्चे को जरूरत है वो हम प्रोवाइड कर पाए। ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट होना चाहिए। जो स्टाफ है उसको वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाए ताकि उनके भी अंदर भी अवेयरनेस डेवलप हो। लीडरशिप ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो टीचर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की लीडरशिप की जाए, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो साथ में मिलकर प्लानिंग कर पाए लॉन्ग टर्म गोल्स पे और एक तरीके से जो कॉमन गोल्स है उन पर काम करें, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करें। I would like to share one more PDF with you all, जो मैंने स्टीरियोटाइप्स के लिए देखा था। एक एग्जांपल मैं शेयर विद यू, मुझे उसमें आपका रिस्पॉन्सेस भी चाहिए। तो आर यू ऑल रेडी? यस, वेट अ मिनट। यहाँ मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको शो करूंगी जिसमें मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स किस तरीके से। There are some statements given below in these two sessions according to what you think is appropriate for section. अब यहाँ पर दो सेक्शंस है, गर्ल्स और बॉयज। देखिए, they are well behaved. आपको क्या लगता है? आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स किसके लिए होगा? वेल बिहेव्ड Girls. they are soft. Girls. Soft spoken for girls. Second, Soft spoken And girls. Usually we say and boys. third one. Okay, Boys. fourth one. Boys. Fourth one. Again we say for boys. Fifth. Don't cry for girl. Boys. 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 They are rowdy. Boys. Boys. They are good at school. Good at They are school good for at boys. school. Boys. They are good at cooking. Girls. They are emotional. Girls. Thank you for your response. अब एक बार मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे अभी आपने रिस्पॉन्स दिया कि दे आर वेल बिहेव, तो हमने इसे गर्ल्स में डाला। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये हमने गर्ल्स में डाला। फिर फिजिकली स्ट्रॉन्ग की जब बात आई बॉयज, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स ने हमें कितने अच्छे से जकड़ा हुआ है।
हमने एक सेकंड भी नहीं लगाया और हम समझ गए कि ये स्टेटमेंट गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। तो हमें इन स्टीरियोटाइप्स को भी खत्म करना है, तभी हम एक क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हर स्टूडेंट की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। थैंक्स फॉर टुडेज सेशन, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। So teachers, if you have any question, please ask. Then at the end, I will give information about the contact details so that you can get certificate. You can open up your video also if you want to ask any question. Good afternoon, Lavanya ma'am. Good afternoon, sir. Jyoti this side. गुड आफ्टरनून मैम। Uh, First of all, thank you so much for providing so many attributes of the term inclusive education. We have heard about it a lot of time, but you have put light on it and increased our knowledge about it so that we can be more empowered when we go to the classroom next time, and we are not having the same vision when we are looking on the strength of 24 or 28. So thank you so much first of all for that. Ma'am, I have a query. Like, can you just give me one example where you were talking about we should include students, admin, and teachers for planning so that they also feel that they have given decision for some problem solving situation. So, can you give me just one example where they all three can be included? Admin, academic, and students. Just one example so that in future we can also take care of this. मैम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर हमें फिजिकल बैरियर को हटाना है तो उसके लिए हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वो डेवलप तभी हो सकता है जब एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रिंसिपल या फिर जो एजुकेटर है वो सब इन्वॉल्व हो, और इसका इफेक्ट एक स्टूडेंट की एकेडमिक्स पे भी पड़ता है, लर्निंग पे भी पड़ता है। तो आई थिंक दैट फिजिकल बैरियर को इम्प्रूव करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एडमिन्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। I would like to add to it, मैम। हमने अपने स्कूल एक्टिविटी में क्या किया, इको क्लब में हमने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया अपने साथ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया अपने साथ, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इन्वॉल्व किया। हमने स्लोप्स क्रिएट करे। तो जो स्लोप्स थे वो वुडन स्लोप्स थे, जिसमें हमने कारपेंटर की हेल्प ली, और वुडन स्लोप्स हमने हर जगह स्टेयर्स जहाँ पर थी, एंट्री स्टेयर्स थी ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री की, वहाँ पर हमने ये प्लेस करे। तो 2 स्टूडेंट्स थे जिनको फिजिकल बैरियर था, उनको ये एक तरह से स्टैंड्स की वहाँ पे ज़रूरत थी, तो हमने वो स्टैंड्स क्रिएट करे। यहाँ पर हमने उन स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जिनको ये नीड थी, और साथ में जो अदर स्टूडेंट्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया कि वो उनकी नीड को समझे और नीड को केटर करने के लिए एक एक्टिविटी करें। तो इको क्लब की एक एक्टिविटी भी हो गई, प्लस हमारा एक पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए कि हमारा जो बच्चा है वो कुछ अच्छा कर रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया, हम लोगों ने कारपेंटर्स और ऑल जो भी पेमेंट होती है वो सब करी, और एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हम लोग लेके आए जिससे बच्चे भी अवेयर हो गए और जो नीडी थे उनका भी बेनिफिट हुआ। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग काफी सारी कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स इन आवर स्कूल, तो क्लब्स में एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जा सकता है। Wonderful example, sir. Thank you. Any other question, any teacher? Any question or anything that you have done that you would like to add? Good morning, Ms. Lavanya and others. Class, there's a child who's hard of hearing. Good afternoon. There's a child in my class who's hard of hearing, so he's using different type of hearing aids. His parents are very cooperative. They keep on going for different sessions. And recently they come up with some mic that teacher, like collar mic we use. If teacher is using it, so my child will get added benefit. He can understand the things in a better way. So many times, whenever he bring it, or many times he forget to bring it to school,
So when he brings to school, we are using it and we are cooperating it with him in that way. So that's our inclusion in the classroom, and the parents are also happy with this. That is very good, ma'am. Any other That's teacher who would like to share any experience, personal experience with the students with special need, or who would like to ask any question? Okay, so thank you, Lavanya ma'am, for the session. And now I would like to share details about how you can get the certificate for this session. So thank you, ma'am. I'm sharing my screen. It was a wonderful session and very useful. Thank you, sir, for providing me this opportunity to as a speaker of this webinar. It's a great opportunity for me. So teachers, I'm posting my contact number, WhatsApp number on the chat. My number is 955 756 4442, and my name is Abhinav. You can contact me on WhatsApp for the certificate. And at the end of the meeting, we will upload this video on our YouTube channel. Our YouTube channel is by the name of Yuvan Gurukul. So I'm showing you that YouTube channel. Sir, please repeat your number. 955 756 4442. It is in the chat also, ma'am. Okay, thank you, sir. Okay. And I'm sharing this website. So this is our website. I have shared this before also, yuvangurukul.com. On this website, when you will visit organization detail, you can know about us, you can know our aims and objective, and you can also get our membership. And when it comes to workshops, you can visit this training part. Workshop link is there. On this link, we publish all the workshops that we have conducted. So this workshop will also be published like on this page like this. So just like for an example, this was the previous workshop, distress to de-stress. So if you open this link, you can see the details of the this workshop, screenshots, as well as the workshop which is published on YouTube. So you can access all these workshops and everything. There is press release related to this workshop. There is one exercise related to this workshop, and there is a link to get certificate. So if you click on this link, you will join our WhatsApp group. And if you are already there in our WhatsApp group, you can just post your name and your school so that we can generate your certificate. And if you're not in our WhatsApp group, you can visit this website. Otherwise, you can just WhatsApp me on my number 955 756 4442. And to know more about our organization and our if you want to connect in any way with our organization, please visit our website and know about our organization. Every detail is given. In about us section, you can know about the team and about the registration and everything related to our organization. And in this aims and objective, you can know about our aims and objective, what we are doing and what we are planning to do. And there is this membership. You can take our membership also. There are two types of memberships, individual and institutional membership. So you can take our membership and you can download your membership certificate. And all the resources and everything that we are offering is free for the teachers. We don't charge for the material ITC aid that we provide, teaching aids that we provide. We don't charge for it. And we also don't charge for the workshops and anything. So I would like if you connect with our organization, and we can also work to make your school more inclusive, and we can plan according to your schools also. So I hope if there is any question, please ask. So if there is no question, we can end the meeting. Thank you all for joining. Thank you, ma'am. Once again, Lavanya ma'am. Thank you, teachers. Thank you, sir.